A very good afternoon, and I'm honored to be a part of this platform with Milo as it helps me connect with all of you. I'm Dr. Bhavna Barni, a child and a clinical psychologist and a relationship therapist, and I have worked with people across the world for over 25 years. I head the psychology department with the Fortis Group of Hospitals. I'm the founder of Happiness Studio across the NCR and the co-founder of PsyCare, a neuropsychiatric hospital. First of all, a massive and hearty congratulations to all the would be mothers and the new mothers. I wish you all good luck and the very best of health for yourself and your baby in this beautiful journey of motherhood. I understand that pregnancy comes with its own set of emotions. Many are extremely beautiful, and some might bring about stress about the changes that are going to be happening to your life and to your body and to the baby. COVID 19 has marked our lives with even more uncertainty, and it's understandable that further anxiety and stress may have accumulated in you. You might have had certain plans for your child's birth or are unable to visit your physician due to the lockdown or fear of infection. Or you might have wanted your family around your delivery time, and life is not going how you wanted it, furthering your anxiety. Also, if you are a new mother, you might have noticed that how stress can affect your breast milk production. Mother's milk is vital to the baby's growth. It contains antibodies that protect the child against diseases. Feeding the child also builds your attachment bond. Therefore, stress is not going to have a negative impact on your body, which is already delicate post-delivery, but can also have a major impact on your child's health. It can also impact your mood, where you're either angry, irritable, or you're anxious, insecure, or even depressed. And I can go on and on and on about the ill impacts of stress for pregnant and lactating women. However, let's begin and focus on creating solutions during this difficult phase. Let's understand what are the signs that you might be going through stress. There might be a poor quality of sleep, there might be changes in your appetite, there might be frequent feelings of fear and worry about the pregnancy and the delivery. You might also be getting moody like we talked above. Now, let's discuss how can we handle all these changes along with stress, especially in this new phase when you have a new responsibility of being a mother or going to be a mother. It's important for you to formulate a constructive schedule for yourself. Even more important for yourself is keeping all the constructive schedules to yourself and don't be guilty about it. Secondly, if you are going to need to keep extra quality time with your own self, look after that time that you have chosen specially for you. You must reduce your responsibilities and reduce that perfectionist attitude that you have for your responsibilities. And additionally, please feel fair to share these responsibilities because you are going through a new phase where your body is going through some hormonal changes, some emotional changes, and thereby you need to look after your well-being. And for that, reducing your responsibilities will help you. Also, seeking support from your spouse and other family members is absolutely permissible and is also the need of the hour. So don't hesitate to do that. Go ahead and seek a new structure into your life which gives you adequate amount of time to rest and sometimes also to do the usual pleasurable activities that give you positive reinforcement. As new mothers, you may not be getting that time through the night hours, but you can even rest when the baby is resting during the day. Moreover, look after your appetite, look after your meals, and make it even more nourishing than what it was earlier. Acquire new skills because the more your brain gets developed, on one hand, it's better for your baby's development. Secondly, the more you nurture yourself with some hobbies, some pleasurable things, the more endorphins get generated, which itself leads to a feel-good hormone for yourself and gets translated into your baby as well. Especially during this time, don't spend too much time over consuming the media. Just look at authentic government sources that there are. And additionally, avoid a lot of discussion with your peers
around this, because negativity and the problem zones will only build up your stress hormones, and don't need these at this point of time. Look after yourself by practicing social distancing, yet stay connected. Stay connected not only with your family and friends that you were bonded with, but also you can set up a new set of friends, of new mothers, who you can find on a lot of support groups that are getting created during these times. You can also look at some online classes that are there for the newborn care, lactation, that is going to help you. Most importantly, some time must be kept for your exercise, physical as well as mental and downtime, as these are extremely beneficial. Let me take you through a small breathing exercise that I've developed specially for you pregnant mothers and the ones who've just delivered. It's very, very simple, yet very, very effective. All that you need to do is you need to take a deep breath in, hold that breath for a count of 4, release it out at a count of 4, and again breathe it in at a count of 4. So because your entire immunity needs to still cope up, all you need to do is do deep breaths. Second step, every time you're breathing in, you need to breathe in relaxation. And every time you breathe out the tension, breathe out the stress, breathe out the anxiety. Even repeating it merely 5 times, thrice in a day, is going to bring about a lot of calm, a lot of relaxation, a lot of soothness to your mind and to your body. At the end, before I open to reading out the question and answers, I would like to say, consider online counseling if you find yourself not able to deal with the stress, even with these techniques that I've just suggested, and more that we're going to discuss. Because excessive worrying or negative feelings might start taking a mental and physical toll on your body and your baby's health. Therapy can help you stay positive in this delicate phase of life and cope with the stress that comes along with this phase better. It is a beautiful phase. It is something that you should cherish. With that, I've got a lot of questions that I can read on my side, and I'm going to try and answer all of these because they are all very, very special to me. I think the first question comes from our dear Deepika, जो कह रही है कि 7 साल के बाद IVF से मुझे कंसीव हुआ है, अभी मेरा 4था महीना चल रहा है, पर मेरे ससुराल वालों की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हूँ, कोई केयर नहीं करता और मुझे मम्मी के घर भी नहीं जाने देता. दीपिका, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बट इस समय बहुत अधिक ज़रूरी है कि आप अपनी मानसिक स्थिति, अपनी इमोशनल स्थिति को अपनी केयर के लिए रखें. मैं समझ सकती हूँ कि इस समय आपको नर्चरेंस और केयर की ज़रूरत है. मेरी सबसे पहली सलाह रहेगी कि ये केयर आप खुद को देना शुरू करो. स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट आइडेंटिफाइंग कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको करने से मुझे खुशी मिलती है. उसमें आपका शेड्यूल हो सकता है जिसमें आप अच्छे से सो, अच्छे से खाओ, जब आप सुबह उठो तो थोड़ी सी प्रेयर कर सकते हो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हो, ताकि आपका दिनचर्या और ज़्यादा खूबसूरती से शुरू हो सके. इसके साथ साथ आपके हस्बैंड के साथ आप एक ओपन कम्युनिकेशन रखिए, जिसके अंदर आप अपनी एंजाइटी, अपने स्ट्रेस को उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, और वो भी आपको कुछ ना कुछ सलाह देंगी, कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस देंगी जो आपको काम आएंगी. और उसके साथ साथ वो अपना सपोर्ट जब आपको देंगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ, अब हम एक नहीं हैं, अब हम 2 हैं, और 1+1 101 बन जाता है. अपना ख्याल रखिए. मम्मी के पास नहीं जा सकते तो अपने परिवार वालों से कनेक्टेड रहिए. आजकल बहुत सारे कम्युनिकेशन के ज़रिए हैं. एक ऐसा भी है जिससे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो सारे ज़रिए खोलिए और अपने आप को खुश रखिए, सोशली कनेक्टेड रखिए, क्योंकि ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए, दोनों के लिए बहुत आवश्यक है. एक और क्वेश्चन मेरे पास आया जो पूछ रहा है कि मेरी बेटी है जो 3 साल की है, आजकल घर में रहने की वजह से कुछ अजीब सी बातें करने लगी है. कभी किचन में जाकर बर्तन धोने लगती है, कभी मंदिर में खड़े होकर भगवान से बातें करती है. पढ़ाई करने में उसका मन नहीं लग रहा. रवि कुमार, मैं समझ सकती हूँ कि एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर
सभी को परेशानियां हो रही हैं, पर आपकी तो ये 3 साल की प्यारी सी बिटिया है, उसको भी परेशानी हो रही है, क्योंकि इस समय एक तनाव की प्रवृत्ति हमारे पूरे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड में घूम रही है, जो हम सबको इम्पैक्ट कर रही है। तो ये जो बिहेवियर्स हैं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे इसने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे कर रही हूँ जिसमें मन नहीं लग रहा, तो ऐसी चीज़ें ढूंढिए जिसमें उसका मन पहले लगता था, या ऐसी चीज़ें जिसमें आपको लगता है कि उसका मन लग सकता है। उसके साथ खुल के बात कीजिए, कीप योर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन विद हर, जिसमें आप कहो कि बेटा हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं तेरा आजकल मन भटक रहा है या तेरा मन नहीं लग रहा, मैं तेरे साथ हूँ। क्रिएट दैट बॉन्ड। जितना आप उसके नज़दीक आएंगे, उतना ही वो इन सारी परेशानियों से, इन सारी इररेलेवेंट चीज़ों से दूर जाएगी। दूसरी, उसकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें लाइए जो उसको करने का मन करे। इस समय पढ़ाई पूरी सीमा पे अगर ना भी हो, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसके साथ कर सकते हैं और जो आप उसको समझा सकते हैं कि वो कर सकती है। रवि, इसको शुरू कीजिए, उसको प्यार दीजिए, उसके साथ बॉन्ड बढ़ाइए। उसके जो आसपास दोस्त हैं उनके साथ उसका फेस टाइम करा दीजिए, फ़ोन पे बात करा दीजिए। परिवार वालों का सहारा लीजिए कि क्या हम कर सकते हैं ताकि ये एक नॉर्मल फेज़ में वापस आ सके। एक और क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ प्रियाक का, जो एक 6 महीने की बेटे की मदर है। वो कह रही है कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरी बेबी 6 महीने की है, मैं एमबीए भी कर चुकी हूँ, पर अभी तक कोई जॉब नहीं मिला और हस्बैंड भी मेरे को नहीं समझते। प्रियाक, मैं समझ सकती हूँ कि आप इस समय एक दुविधा में हैं। आप एक क्रॉस रोड में हैं कि मैं किस तरफ आगे जाऊँ, किस तरफ रुकूँ। बहुत ज़रूरी है आपको अभी ये समझना कि आप किस तरफ अपनी क्षमताएं लगाना चाहती हैं। हाँ, आप एक अच्छी माँ बनना चाहती हैं, आप एक अच्छी होम कीपर बनना चाहती हैं, और आप कोई अपना काम भी शुरू करना चाहती है। तो सबसे ज़रूरी है कि फोकस करिए कि इस समय आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करेंगे, और ये प्रायोरिटीज़ फिर आप अपने हस्बैंड के साथ एक न्यूट्रल टाइम पे डिस्कस करिए, जब आपको लगता है कि वो भी परेशान नहीं है, वो भी स्ट्रेस में नहीं है, आप भी स्ट्रेस में नहीं है, और एक समय लेके बात करिए कि मुझे कुछ दिनों से कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। उसके बाद उनसे कहिए कि मैं सोच रही हूँ कि अपना दिनचर्या में अगर हम कोई एडिशनल सपोर्ट ले आए, जैसे कोई स्टाफ ले आए या कोई हाउसकीपर ले आए, जो एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम कर सकता है, और दूसरा उसको करने से मेरे पास समय आ सकता है जिसमें मैं बाकी वो चीज़ें कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, और एक बैलेंस करके अपना घर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स माई चाइल्ड, टुवर्ड्स माई फैमिली, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स माई वर्क को भी इंटीग्रेट करके मैं आगे चलूँगी। जितना समय आपके पास है उस समय को फोकस करिए अपने प्यारे से बेबी के साथ बॉन्ड करने में। ये समय वापस नहीं आएगा। फोकस ऑन इट, एंजॉय इट, फाइंड द प्लेजर्स, और इसके साथ साथ अपने हस्बैंड के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रेंथन करते रहिए। और अगर दूसरे फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट लेना है, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालने के लिए, अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालने के लिए, जो आप अपने बीवी के साथ शेयर कर सकते हो, हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हो, तो बेहिचक उनसे आप बात कर लीजिए। मेरे ख्याल से 3-4 प्रश्न हैं जो एंजाइटी से मिलते हुए हैं। एक हमारी योगा गर्ल ने पूछा है जो 23 वीक्स प्रेग्नेंट है। एक हमारे को आया है दिव्या से, एक आया है हमें मोना से। यहाँ मैं 3-4 क्वेश्चंस देख पा रही हूँ जिसमें कह रहे हैं कि बिना कुछ हुए भी मन उदास रहता है और परेशान रहता है, अपने बीवी से भी सही रिलेशंस बिल्ड करने का मन नहीं लग रहा है, गुस्सा आ जाता है। बड़ी नॉर्मल चीज़ें हैं ये, क्योंकि आप एक ऐसे दौर से निकल रहे हैं जिसमें अभी आपके इमोशंस पूरी तरह से सेटल नहीं हुए, और उसके साथ साथ एक ये और चैलेंज आ गया है, कोविड का चैलेंज, जिसके अंदर एक न्यू नॉर्मेलिटी का फेज हमारी लाइफ में आया हुआ है। तो आपका एक तनाव जो अभी नॉर्मलाइज नहीं हुआ था, वो या तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस,
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी के बाद के हार्मोन्स उथल पुथल हुए हैं, उसके साथ एक और तनाव के साथ आप जूझ रहे हैं। तो एंजाइटी और स्ट्रेस आज की डेट में ज़्यादा हो ही रही है। आपने क्या करना है, आपने अपने लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव शेड्यूल बनाना है। उसमें आपने वो चीज़ें करनी है जो आपकी सेहत के लिए, आपके इमोशनल बैलेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़रूरी, आपने अपना एक नियमित रूप से सोने का शेड्यूल बनाना है। बेशक उसमें 6 से 7 घंटे नींद हो, और अगर पूरी रात की नींद नहीं आ रही है, जैसे आपका बेबी छोटा है, आप उठ रहे हो, रात में उठना पड़ता है, तो दिन में जब बेबी सोता है आप उस समय अपनी नींद ज़रूर पूरी कीजिए। मिनिमम है 7 घंटे की नींद आप पूरे 24 घंटे में ज़रूर लीजिए। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने अपने मील्स का ख्याल करना है, क्योंकि वो एक और ऐसी रिजुविनेशन है जो आपको इम्यूनिटी देगी अपने ये एंजाइटी और तनाव से लड़ने के लिए। तीसरी चीज़, कोई ऐसी चीज़ें आप ज़रूर करिए अपने दिन में जो आपको अच्छी लगती हैं, जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, इमोशनली भी, मेंटली भी, और ज़्यादा अच्छा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करने के लिए। एंड लास्टली, प्लीज़ कम्युनिकेट टू योर हस्बैंड एंड टू अदर फैमिली मेम्बर्स कि हाँ, मेरे साथ ऐसा दौरान चल रहा है जिसमें मुझे अधिक तनाव, अधिक एंजाइटी, अधिक मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो आप मुझे समझिए, और हो सके तो आप मुझे संभालिए, अपना सपोर्ट देके, अपना प्यार देके, अपनी नर्चरेंस देके। उनको ब्लेम नहीं करना है, उनको कंप्लेन नहीं करना है, उनके साथ एक प्यार भरे बात में सपोर्ट सीख करना है। और आप आगे चलिए और देखिए, बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ें करने से फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ जो अभी हमने एक मेडिटेशन टेक्निक सिखाया था, ब्रीदिंग का टेक्निक सिखाया था, वो एंजाइटी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है, क्योंकि और भी मैं क्वेश्चंस देख रही हूँ जो एंजाइटी से रिलेटेड है। बहुत आपको फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे या किसी प्रकार की भी माइंडफुलनेस या मेडिटेटिव एक्टिविटी करना शुरू करेंगे। एक प्रश्न मैं और देख रही हूँ, प्रेरणा ने भेजा है, जो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है, जो कह रही है कि 5-6 दिन पहले से उनका 7th मंथ लगा है, पर उनको बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, और 4 बारी पहले उनका मिसकैरेज भी हो चुका है। ये उनका फर्स्ट बेबी है। मैं पूरी तरह से आपसे एम्पथाइज करती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि ये बेबी आपके लिए कितना प्रेशियस होगा, पर गुस्सा ना आपके लिए अच्छा है, ना आपके आने वाले बेबी के लिए अच्छा है। दोनों की सेहत के लिए सबसे पहले आप कमिट कीजिए कि मैंने अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से मुझे ऐसा गुस्सा आ जाता है, और फिर अपने आप को आपने नर्चर करना है कि जब ऐसी परिस्थितियाँ आए, क्या मैं अपने आप को डाइवर्ट कर सकती हूँ, डिस्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, ताकि मैं इस गुस्से से हट सकूँ। अपने आप को आपने अपना ख्याल रखना है, जिसमें जैसे मैंने अभी पहले बताया, अपना स्लीप वेक साइकिल का ख्याल रखना है, अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, अपने लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, हॉबी एक्टिविटी, जिससे कि आपका मन लगे और आपके पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़े। बहुत अच्छा रहेगा इस समय आप अच्छी चीज़ों पे ध्यान रखिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, बल्कि बहुत सारी किताबें भी आई हुई हैं ऑन बिकमिंग अ न्यू पेरेंट। उन सबको अगर आप देखेंगी, पढ़ेंगी, सुनेंगी, तो आपके मन को अच्छा लगेगा और आपके बेबी को डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं और भी आ रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि मैं अपने स्ट्रेस से कैसे कम करूं, मुझे रात में भी और दिन में भी नींद नहीं आती, और मुझे ये थॉट्स भी आते हैं, और मैं 20 हफ्ते प्रेग्नेंट हूँ। जरीना जी का एक क्वेश्चन है, और एक ऑस्ट्रेलिया से भी ऐसा ही क्वेश्चन आया है जो 21 वीक्स प्रेग्नेंट है। और हम अभी तक यही बात कर रहे हैं कि सोना कितना आवश्यक है। एक स्लीप हाइजीन का मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ, जिसके अंदर बड़ा सिंपली आपने क्या करना है, आपने अपना एक दिनचर्या बनाना है, जिसके अंदर आपने रात को सोचना है कि मैंने किस समय सोना है, और सोने से पहले आपने कम से कम सोने के 2 घंटे पहले अपना खाना खा लेना है, और थोड़ा सा अगर आप अपनी सूदिंग एक्टिविटीज़ कर सकें वो आप ज़रूर कीजिए। जब आप सोने लगे उसके आधा घंटा पहले अगर हो सके तो एक वार्म वाटर शावर ले लीजिए,
दूसरा स्लीप हाइजीन का स्टेप होता है जिससे बड़ी रिलैक्सिंग मिलती है। एक आप टब ले लीजिए जिसके अंदर आप गर्म पानी रख लीजिए, उसके अंदर हल्का सा सेंधा नमक या नॉर्मल नमक भी डाल दीजिए और उसमें आप अपने पाँव रखिए 5 मिनट के लिए। उसके बाद आप अपने पाँव को मसाज कीजिए हील्स से लेके टोस तक। जब आप ऐसे करोगे तो बेस्ड अपॉन एक्यूप्रेशर आप देखोगे कि आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स को एक रिलैक्सेशन मिला है। तीसरी चीज़, हल्का सा गरम और मीठा अगर आप डालना चाहें वो डाल के थोड़ा सा आप दूध पी लीजिए। और उसके बाद जब आप लेटें तो एक डीप ब्रीदिंग कीजिए जिसके अंदर आप लंबी गहरी सांसें लेते हुए रिलैक्सेशन की फीलिंग्स अंदर लीजिए और जब आप बाहर छोड़ रहे हैं तो सारा अपना तनाव बाहर छोड़ दीजिए। और उसके साथ एक एफर्मेशन अपने आप को दीजिए कि मैं बहुत प्यारी नींद में सोने वाली हूँ, मैं बहुत प्यारी नींद में अपने बच्चे को सुलाने वाली हूँ। इसको ब्रीद इन करते करते आप देखोगे कि ग्रेजुअली आपकी नींद आती जाएगी। इसको कीजिए, दिनचर्या को खूबसूरत रखिए, अच्छी चीज़ें करिए ताकि पूरा दिन आपको एक खूबसूरत एनवायरनमेंट दे, ताकि जब रात आए तो आपको किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। 2 घंटे पहले आपने परेशानियों के बारे में नहीं सोचना है और सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है सोने से पहले। इसको करके देखिए, आपको ज़रूर बेटरमेंट मिलेगी। हमारे पास मिताली का भी क्वेश्चन है जो कह रही हैं कि वो 32 वीक्स प्रेग्नेंट है और श्रुति भी कह रही है सेम ही क्वेश्चन कि मैम घर का एटमॉस्फेयर मेरे इन लॉज की वजह से स्ट्रेस और नेगेटिविटी से भरा हुआ है और मेरे को ये इफ़ेक्ट कर रहा है और फिर मेरे डे और नाइट दोनों में नेगेटिविटी आ रही है। इस समय बड़ा ज़रूरी है आपको ये समझना कि आपको अपनी केयर सबसे ज़्यादा करनी है और जो बाकी के ट्रिगर्स हैं, जैसे हो सकता है कि आपके इन लॉज अभी आपको ट्रिगर कर रहे हों और भी ऐसी चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हों, उनको आपने सिलेक्टिवली फ़िल्टर आउट कर देना है। चाहें तो आप अपने करीबी, सबसे करीब जो घर में हैं, जैसे कि आपके हस्बैंड, उनके साथ आप बात कर सकते हैं कि हाँ, ऐसी परेशानियाँ मुझे आ रही हैं मम्मी की वजह से या पापा की वजह से, मैं कंप्लेन नहीं कर रही पर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या आप उनसे बात कर सकते हैं या हम दोनों उनसे बात कर सकते हैं या हम कोई ऐसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं जिससे कि इन प्रॉब्लम्स का, इन ट्रिगर्स का एक समाधान हो। जब आप ओपन करेंगे अपना कम्युनिकेशन चैनल तो आप और आपके हस्बैंड दोनों मिलकर कोई ऐसी राह ज़रूर निकालेंगे जिसमें आपको बेनिफिट होगा और आपके इन-लॉज को भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी ये जानते हैं और वो भी ये शायद चाहते हैं कि आप और आपका बच्चा, जो उनके लिए भी बहुत प्रेशियस है, एक खुशहाल माहौल में आए। तो आपस में बात कीजिए, अंदर ही अंदर बात रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, बट याद रखिए जब बात कीजिए उसको रिस्पेक्टफुली कीजिए, एक कंप्लेन या एक ब्लेम की तरह नहीं कीजिए। एक और क्वेश्चन मेरे पास दिख रहा है, ये हमें मोना ने भेजा है शायद। वो 39 वीक्स प्रेग्नेंट है। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस मोना। परचेज मैं एक बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, इस डिलीवरी के लिए एडमिट होना है, मेरी तबीयत भी अजीब सी हो रही है, डर या खौफ बैठा है कि क्योंकि एंजाइटी की प्रॉब्लम है, बस 24 घंटे ये चलता है माइंड में कि डिलीवरी कैसी होगी, पेन से बहुत डर लग रहा है और इस बार स्पेशली बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं आपको ये कहूँगी मोना कि हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक बहुत ही खूबसूरत फेज़ में हैं जहाँ आप एक माँ बनने वाली हैं। इस फेज़ को आप एंजॉय कीजिए। देखो, एक नॉर्मलिटी का फेज़ है जिसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं, बट ये दिक्कतों के पीछे इतनी बड़ी खुशी है कि अगर आप उस खुशी के ऊपर फोकस करेंगी और इस एंजाइटी के ऊपर नहीं फोकस करेंगी तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगना शुरू होगा। जितना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा उतना ही ज़्यादा ये डर, ये फिक्र, ये एंजाइटी आपसे दूर होती जाएगी। बड़ा ज़रूरी है इस समय आपको अपना संतुलन रखना, अपने लिए अच्छी चीज़ें करना, अपने लिए अच्छे विचार रखना, ताकि आप एक अच्छा वातावरण अपने आप को दें जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बच्चे के ऊपर भी होगा।
आप चाहें तो ये चीज़ें डिस्कस कर सकती हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर के साथ, अपनी उन सखियों के साथ, बहनों के साथ जो प्रेगनेंसी का दौर निकाल चुकी हैं। वो आपको बताएंगी कि ये एक दौर है जो बड़ा ही प्यारा दौर है और आपको सहारा मिलेगा। बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन आजकल क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स हो रहे हैं जिनको आप ज्वाइन करिए और आपको सहूलियत मिलेगी कि अकेले आप ही इस फेज़ में नहीं हैं। बहुत सारे लोग इस फेज़ से गुजर रहे हैं, पर ये एक फेज़ ब्यूटीफुल फेज़ है। बल्कि सभी माँओं के लिए मैं ये कहूँगी कि आप अपना कंसंट्रेट रखिए डी स्ट्रेस पे, अच्छी चीज़ों पे और डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन करते रहिए। God bless all of you for a best health, not only physically but mentally, emotionally and spiritually. Look after yourself and good luck.